Good morning, students. Welcome to Green Valley Digital Classes. Today we are going to discuss one of the important topics of chemical bonding, and that is called as hybridization. Chemical bonding that's the name of chapter, and one of the important topics in this chapter is hybridization. Hybridization. In order to explain hybridization, let's take the case of methane. We've got carbon with atomic number 6, electronic configuration 1s2, 2s1, x1, y1, z1. This is the configuration of carbon in excited state. Excited state. Hydrogen atomic number 1, configuration 1s1. Now, in methane, carbon has 4 half-filled orbitals. It can form bonds with 4 hydrogen atoms. Carbon has the bonding capacity of 4. Now, if overlapping patterns will be that s orbital will overlap with s orbital of hydrogen, then we are left with 3 p orbitals and 3 hydrogen atoms will establish bond with carbon atom, and it will be sp overlapping. sp overlapping. That means one of the bonds will be formed by ss overlapping and the other 3 bonds by sp overlapping. We expect nature of bonds to be different. Bond formed by ss overlapping should be totally different than the bonds which are formed by sp overlapping. But experimentally it has been confirmed that in methane all the bonds are identical in all respects. All the bonds in methane are identical in all respects, in terms of energy, in terms of shape. That means overlapping pattern cannot be this, क्योंकि अगर एक बॉन्ड SS overlapping से बना है, it should be having different nature than the other 3 bonds. But experiments confirm that in methane all the bonds are identical in all respects. That rules out the possibility of this type of overlapping. In order to explain that how all the bonds in methane are identical in all respects, scientists say that carbon undergoes hybridization. ओवरलैपिंग से पहले, बॉन्ड बनाने से पहले कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन होता है. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन इज एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन. कार्बन के ये ऑर्बिटल्स इससे पहले कि ये ओवरलैपिंग में हिस्सा ले, बॉन्डिंग में हिस्सा ले, पहले इनका हाइब्रिडाइजेशन होता है.
What is hybridization? Energy redistribution. हाइब्रिडाइजेशन का डेफिनेशन है प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज. ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज पहले इंटरमिक्स हो गए. 2s ऑर्बिटल हैज लेसर एनर्जी, 2p ऑर्बिटल्स हैव हायर एनर्जी. बॉन्डिंग से पहले, इससे पहले कि कार्बन हाइड्रोजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएं, पहले हाइब्रिडाइजेशन होता है. व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी. इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी so as to form new orbitals which have same energy and have identical shape. हाइब्रिडाइजेशन जब होता है, एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन. बिफोर हाइब्रिडाइजेशन 2s ऑर्बिटल की एनर्जी कम थी, 2p ऑर्बिटल्स की एनर्जी ज्यादा थी. नव हाइब्रिडाइजेशन हो गया, एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया. प्रोसेस ऑफ इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी so as to form new orbitals which have identical shape and have same energy. Hybridization leads to the formation of degenerate orbitals. हाइब्रिडाइजेशन से डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बनते हैं. व्हाट आर डिजेनरेट ऑर्बिटल्स? ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी. सो व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? इंटरमिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एंड रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनर्जी so as to form new orbitals which have same energy and identical shape. Now ये जो मीथेन है, मीथेन में कार्बन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. गौर से सुनना. इन मीथेन कार्बन अंडरगोज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिडाइज हो जाता है. एक s ऑर्बिटल 3p ऑर्बिटल्स के साथ हाइब्रिडाइज होता है. वी कॉल दिस एज sp3 हाइब्रिडाइजेशन. गौर से सुनना. बिफोर हाइब्रिडाइजेशन ये s ऑर्बिटल था, अब ये s ऑर्बिटल नहीं है, अब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया. इसमें अब p कैरेक्टर भी आ गया, s कैरेक्टर भी. ध्यान से सुनना. नाउ ये s ऑर्बिटल था, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया. ये p था, sp3 sp3. Nothing happens to electrons during hybridization. Before hybridization ये हाफ फिल्ड थे, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन भी ये हाफ फिल्ड है. सिर्फ एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बन गए. नथिंग हैपन्स टू इलेक्ट्रॉन्स ड्यूरिंग हाइब्रिडाइजेशन. अगर ये हाइब्रिडाइजेशन से पहले ये ऑर्बिटल हाफ फिल्ड था, आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन भी हाफ फिल्ड है. 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन गए, चारों हाफ फिल्ड है. गौर से सुनना, चारों हाफ फिल्ड है. नाउ अब ये हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे. पहले ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बन गए, इनकी एनर्जी सेम हो गई. ये s ऑर्बिटल था, इसका शेप स्फेरिकल था बिफोर हाइब्रिडाइजेशन. ये p ऑर्बिटल, इसका शेप डम्बेल था बिफोर हाइब्रिडाइजेशन. अब ये s नहीं रहा, अब ये sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बन गया. ये भी क्या बन गया? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल. इसकी शेप, इन सबों की शेप एक जैसी होगी. अब नॉट ओनली दे विल बी हैविंग सेम एनर्जी,
but also identical shape. So what is hybridization? Process of intermixing of orbitals of different energies and redistribution of energy so as to form new orbitals which have identical shape and have same energy. Nothing happens to electrons during hybridization. अब ये जो कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, अब ये कार्बन के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे. नाउ आई हैव गॉट कार्बन हैविंग 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, sp3, sp3, sp3 एंड sp3, चारों हाफ फिल्ड हैं. अब ये बॉन्डिंग में हिस्सा लेंगे किसके साथ? हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल्स के साथ. यहां से हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, यहां से s ऑर्बिटल अगेन, देन यू हैव गॉट. नाउ व्हाट आर द ओवरलैपिंग पैटर्न्स? sp3 ओवरलैपिंग, sp3 ओवरलैपिंग, यहां से भी sp3, यहां से भी, यहां से भी. All the bonds will be identical in all respects because overlapping patterns are identical. ये सारे सिग्मा बॉन्ड्स बन जाएंगे, सिग्मा बॉन्ड्स. हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी बॉन्ड बनाएगा वो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड होगा. तो मीथेन में 4 सिग्मा बॉन्ड हैं, चारों बनते हैं बाय sp3s overlapping. Now remember it. Hybridization is a theoretical concept. We believe that कार्बन के ये जो ऑर्बिटल्स हैं, इससे पहले कि ये बॉन्डिंग में हिस्सा लें, पहले इनमें एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन हो जाता है. पहले ये डिजेनरेट ऑर्बिटल्स बन जाते हैं, फिर ओवरलैपिंग में हिस्सा लेते हैं. हाइब्रिडाइजेशन इज एनर्जी रिडिस्ट्रीब्यूशन. हाइब्रिडाइजेशन पहले होता है, उसके बाद ओवरलैपिंग होती है, बॉन्डिंग उसके बाद होती है. Hybridization is a theoretical concept, but it explains 2 important features of molecules. Namely, number 1, shapes of molecules. Number 2, nature of molecules. Both are important. Hybridization is a theoretical concept, but it explains 2 important parameters of molecules. Number 1, shapes of molecules. Shape of molecule is determined experimentally. किसी भी मॉलिक्यूल का शेप एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन किया जाता है कि इसका शेप क्या है. Shape of molecule is determined experimentally, but it is explained on the concept of hybridization. Shape is determined experimentally but is explained on the basis of hybridization. इसी तरह से नेचर ऑफ मॉलिक्यूल, कि कोई मॉलिक्यूल पोलर रहेगा कि नॉन पोलर, कोई मॉलिक्यूल पोलर होगा कि नॉन पोलर, इट इज ऑल्सो एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन. सो हाइब्रिडाइजेशन इज अ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, but it explains 2 important features of molecules, namely shapes of molecules and nature of molecules. Now ध्यान से सुनना. किसी भी मॉलिक्यूल का शेप एक्सप्लेन हम करते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी पर, वेस्पर थ्योरी. वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी. ध्यान से सुनना. Shapes of molecules are explained on the basis of Vesper theory. इस थ्योरी के 2 पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है, गौर से सुनना, किसी भी मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होता है, सेंट्रल एटम का जो वैलेंस शेल होता है, वैलेंस शेल, ध्यान से सुनना,
आपने अभी पढ़ा कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s1, x1, y1, z1। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो क्या बनेगा? sp3 एंड देन दिस। गौर से सुनना, वेस्पर थ्योरी के 2 पॉइंट्स है। पहला पॉइंट, मॉलिक्यूल हमारा मीथेन है। मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम का जो वैलेंस शेल होगा, वैलेंस शेल इज सेकंड शेल। वैलेंस शेल मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होगा, मॉलिक्यूल हमारा मीथेन है, सेंट्रल एटम इसका कार्बन है। मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम होगा, सेंट्रल एटम का जो वैलेंस शेल होगा, सेकंड शेल इज द वैलेंस शेल। वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होंगे, these orbitals which are involved in bonding, these orbitals which are involved in bonding, orbitals which are involved in bonding tend to remain apart from each other। जो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व होते हैं, they tend to remain apart from each other because that decreases इलेक्ट्रॉन पेयर। गौर से सुनना, that decreases इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन। रिपीट करता हूं मैं, मॉलिक्यूल का जो सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम का जो वैलेंस शेल है, वैलेंस शेल के जो ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हैं, these orbitals tend to remain apart from each other as far as possible because this decreases electron pair repulsion and increases suitability। मैं रिपीट करता हूं, सेंट्रल एटम ऑफ द मॉलिक्यूल, वैलेंस शेल ऑफ द सेंट्रल एटम ऑफ अ मॉलिक्यूल, valence shell of the central atom of a molecule which are involved in bonding, these orbitals tend to remain apart from each other as far as possible, far as possible, because that decreases electron pair repulsion and increases suitability। ये पहला पॉइंट है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का। क्या? ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल which are involved in bonding tend to remain apart from each other as far as possible because that decreases electron pair repulsion and increases suitability। दूसरा पॉइंट इसी से निकलता है। व्हाट इज दैट सेकंड पॉइंट? There is one and only one angle possible in a molecule. There is one and only one angle possible in a molecule at which repulsion will be minimum and suitability maximum. There is one and only one angle in a molecule at which repulsion will be minimum and suitability maximum। मॉलिक्यूल में ऐसा एक ही एंगल होगा जिस एंगल पर रिपल्शन मिनिमम होगा और सुटेबिलिटी मैक्सिमम। दैट एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल। दैट एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एज बॉन्ड एंगल ऑफ द मॉलिक्यूल। ध्यान से सुनो, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के 2 पॉइंट्स। पहला पॉइंट, ऑर्बिटल्स ऑफ द वैलेंस शेल which are involved in bonding tend to remain apart from each other as far as possible because that decreases electron pair repulsion and increases suitability। दूसरा पॉइंट इसी से निकलेगा कि मॉलिक्यूल में ऐसा एक ही एंगल होगा
जिस पर रिपल्शन मिनिमम होगा एंड सुटेबिलिटी मैक्सिमम, बाकी तमाम एंगल्स पर रिपल्शन उससे ज्यादा होगा. सो देयर इज वन एंड ओनली वन एंगल इन अ मॉलिक्यूल at which repulsion is minimum and suitability maximum. We call that angle as bond angle of the molecule. और मीथेन में ये बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्रीज है. Therefore we say that methane has tetrahedral shape. Tetrahedral shape. गौर से सुनना, यानी मीथेन में एंगल ऑफ मिनिमम रिपल्शन 109.5 डिग्रीज है. Every molecule will be having specific bond angle and therefore specific shape. हर एक मॉलिक्यूल का अपना अपना बॉन्ड एंगल होगा. Therefore every molecule will be having specific shape. इसी शेप को अगर हम इस तरह से दिखा दें, ध्यान से सुनना, ये जो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, इसका शेप कैसा होगा? इसमें s का कंट्रीब्यूशन 25% है, p का 75. sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप ज्यादा रिजेंबल करेगा p ऑर्बिटल के साथ. तो sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल का शेप हम ये दिखाते हैं. ध्यान से सुनना, हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज वन लार्जर लोब एंड अनदर स्मॉलर लोब. ये इसलिए बनाना होता है ताकि डिफरेंशिएट हो जाए फ्रॉम प्योर p ऑर्बिटल. प्योर p ऑर्बिटल हैज ओनली 2 lobes, या प्योर p ऑर्बिटल हैज 2 lobes ऑफ आइडेंटिकल साइज. प्योर p ऑर्बिटल हैज 2 lobes ऑफ आइडेंटिकल साइज. हाइब्रिड ऑर्बिटल हैज वन बिगर लोब, अनदर स्मॉलर लोब. ये कंप्लीट sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है. दूसरा, ये तीसरा यहां से, एंड देन यू कैन गो फॉर द नेक्स्ट वन. और एक बात, स्मॉलर लोब कोई बनाए या ना बनाए, इट इज अंडरस्टूड कि ये होता है. ध्यान से सुनो, जब आप लिखोगे sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये अंडरस्टूड होता है कि इसका एक लार्जर लोब है या और एक स्मॉलर लोब, चाहे आप बनाओ या ना बनाओ. तो ये है कार्बन सेंट्रल एटम, इसके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स. यही हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बॉन्डिंग में हिस्सा लेते हैं किसके साथ? हाइड्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ. ये हो गया हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल, ये दूसरा s ऑर्बिटल, अनदर वन, another one. What is overlapping? sp3. Bond angle 109.5. What is bond angle? Angle between those orbitals which are involved in bonding. So this is the shape of methane. We say tetrahedral shape with bond angle of 109.5 degrees. So that is the concept of hybridization which I have explained today. Inshallah, next molecule will be beryllium fluoride, then boron trifluoride. Then we have to discuss distorted shapes. What is a distorted shape? When the shape of molecule is different than expected, that's called as distorted shape. उसका रीजन क्या होगा, डिस्टॉर्शन क्यों आया है, वो हम डिस्कस करेंगे. और जो मैंने आपसे कहा, that hybridization is the theoretical concept, but it explains shapes of molecules. वो आगे जाके क्लियर होगा कि कैसे हाइब्रिडाइजेशन से हम शेप्स डिस्कस कर सकते हैं या नेचर ऑफ मॉलिक्यूल डिस्कस कर सकते हैं. थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर.